ناظرین، کوئی زہریلی چیز غلطی سے کھا لی جائے تو 60 گرام نمک پانی میں گھول کر پلائیں۔ اس سے قے ہوگی، جس کے نتیجے میں زہریلی چیز فوراً باہر آئے گی۔ ہر قسم کی برائی سے بچنا چاہتے ہو تو 5 وقت کی نماز ادا کیا کرو۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو ہی بچہ پیدا ہو تو پہلے گھنٹے کے اندر نوزائیدہ بچے کو ماں کا دودھ لازمی پلائیں۔ اپنے دانتوں کو بہتر رکھنا ہے تو ہر کھانے کے بعد کلی کریں اور صبح و شام برش لازمی کریں۔ زیادہ دیر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر کام کرنے سے گھٹنوں میں درد اٹھنے لگتا ہے اور گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو گرمیوں میں زیادہ گرمی لگتی ہے اور دانے نکلتے ہیں تو وہ لوگ آلو بخارے کا جوس پیا کریں۔ پاؤں کے انگوٹھے پر تل کا تیل لگانے سے قد میں اضافہ ہوتا ہے۔ مالٹے کا چھلکا چبا لینے سے ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ مالٹے اور لیموں کا چھلکا سکھا کر پیس کر پھکی بنا لیں اور روزانہ کھانا کھانے کے بعد 1 چمچ کھا لیں۔ کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ نہار منہ کوئی بھی اچھی سی خوشبو سونگنے سے آپ کا دماغ سارا دن فریش رہے گا۔ کمزور لوگ اگر روزانہ 10 دانے انجیر کھا لیا کریں تو دبلا پن ختم ہو جائے گا۔ انگور آنکھوں کے لیے بہترین ہے اور گردوں میں پتھری نہیں ہونے دیتا۔ خالی پیٹ کھٹی چیزیں کھانے سے آپ کا پیٹ خراب ہو سکتا ہے۔ شلجم کاٹ کر کھانے سے وزن میں خاصی کمی آتی ہے۔ لہسن کھانے سے کان کا درد دور ہو جاتا ہے۔ کسی بھی کھانے میں اس کا استعمال کیا جائے تو وہ کھانا ذائقے دار اور لذیذ دار بنتا ہے۔ دودھ میں جو کا آٹا ملا کر چہرے اور ہاتھوں پر مساج کرنے سے چہرہ کھل اٹھتا ہے اور ہاتھوں پر چمک آ جاتی ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی معدے کو طاقت دیتا ہے۔ دن بھر تھکاوٹ نہیں ہوتی اور انسان سارا دن سستی سے بچا رہتا ہے۔ اگر معدے میں گرمی ہو یا معدہ خراب ہو تو سونف کا پانی پئیں، اس سے معدے کی گرمی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اگر چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو کھجور، دودھ اور انجیر کو اپنی روزمرہ خوراک میں شامل کر لو، 19 سال کے نظر آنے لگو گے۔ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر انڈے کی زردی لگا لی جائے تو چہرہ چند دن میں سفید ہو جائے گا۔ اگر چہرے کی جلد سخت ہو گئی ہو تو وہ بھی نرم ہو جائے گی۔ مونگ پھلی کا استعمال اگر خواتین کریں تو ان کے لیے یہ موٹاپے کا باعث بن سکتی ہے۔ خواتین میں خون کی کمی ہو تو انہیں چاہیے کہ کھجور کا استعمال زیادہ کریں۔ چہل قدمی کے دوران چیونگم چبانے سے دل کی دھڑکن کو بڑھنے سے روکنے اور کیلوریز کو جلانے میں مدد ملتی ہے۔ جوانی واپس لانا چاہتے ہو تو روزانہ نہار منہ سیب کا جوس پیا کرو۔ خشک بالوں میں کنگھا کرنے سے گریز کیا کرو، اس سے بال خراب ہو جاتے ہیں۔ دھندلا نظر آنے لگے، وزن کم ہو جائے، پیر اور ٹانگیں سوجنے لگ جائیں تو بھوک زیادہ لگنے لگے تو سمجھو کہ آپ کو شوگر ہونے والی ہے۔ 1 گلاس پانی میں سونف کے تیل کے چند قطرے شامل کر کے روزانہ پی لینے سے موٹاپا آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ بچوں کے کان میں درد ہونے لگ جاتا ہو یا پیپ آتی ہو تو روزانہ رات کو جب بچہ سو جائے تو عرق گلاب کان میں ڈالیں اور کان کے آس پاس زیتون کے تیل کی مالش کریں۔ علم مال سے بہتر ہے، کیونکہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جب کہ تم مال کی حفاظت کرتے ہو۔
उबलते हुए पानी के ऊपर चेहरा करके इसकी भाप लो, इससे चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाएंगी। नहाने से पहले बालों में एलोवेरा लगा लें, इससे बाल चंद दिनों में बढ़ जाएंगे। फटकड़ी का पानी चेहरे पर लगाने से लटकी हुई जिल्द टाइट हो जाती है। जो औरतें रोजाना मेथी दाने का इस्तेमाल करती हैं हमेशा जवान रहती हैं। जो लोग सोने से कबल वॉशरूम से फारिग ना हो, इन लोगों को पेट में दर्द हो सकता है। 1 चम्मच साबूदाना गर्म दूध में डालकर ढांप दें और 15 मिनट बाद चमची हिलाकर पी लें। हर किस्म का बुखार उतर जाएगा। पानी में अर्के गुलाब शामिल करके पी लिया करो। चेहरा हमेशा खूबसूरत और जवान रहेगा। जोड़ों के दर्द में प्याज निचोड़ कर गर्म करके मालिश करें, दर्द से राहत मिलेगी। जो मर्द हजरात गोश्त का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, इनके जिस्म की जिल्द लटक जाती है। अगर आप रोजाना 2 से 3 अदद केले खाते हैं तो आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर आपको चक्कर आते हैं तो गहरी सांस लिया करें और एक जगह आराम से लेट जाया करें या बैठ जाया करें। दांतों की चमक हमेशा बरकरार रखना चाहते हो तो नीम का मसवाक इस्तेमाल किया करो। अगर नहाने के बाद नाक में रोगन जैतून लगा दिया जाए तो इससे जुकाम और एलर्जी नहीं होती। और अगर रात को नाक में जैतून के तेल के चंद कतरे डाल दिए जाएं तो इंसान बहुत सारी बीमारियों से महफूज रहता है। इंसानी जिस्म का वो वाहिद हिस्सा जुबान है जो चोट लगने पर फौरी ठीक हो जाता है। हिचकी को बंद करना है तो 1 लौंग पानी के साथ खा लो। खाली पेट सोने से गुरेज किया करो क्योंकि इससे उम्र में कमी आती है। दांत का दर्द शुरू हो जाए तो दांत के नीचे लौंग रख लो, बहुत जल्द आराम मिलेगा। अगर खाना खाते वक्त रोटी के लुकमे को अच्छी तरह से चबा कर खाया जाए तो मैदा हमेशा ठीक रहता है और गैस से बदबू नहीं आती। बेसन की रोटी खाने से कमजोर मैदे को ताकत मिलती है। बकरे की चर्बी मर्दाना ताकत बढ़ाती है। पुदीने की डंडियों को चबाया करो, इससे जवानी हमेशा बरकरार रहती है। दांतों में दर्द हो या दांत टूट गए हों तो बकरी की चर्बी का तेल दांतों पर लगा दो, इससे दांतों के दर्द से निजात मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन जल्द से जल्द कम हो जाए तो चाय, कॉफी या दूध में चीनी कम इस्तेमाल करें या चीनी बिल्कुल छोड़ दें। जामुन का शरबत पीने से इंसान चुस्त हो जाता है और प्यास की शिद्दत कम हो जाती है। सेहतमंद और काले चमकीले बालों का राज काले चने के आटे की रोटी बनाकर खाने से बाल सेहतमंद और काले हो जाते हैं। जो औरतें तेजी के साथ रोटी खाती हैं तो जान लें वो बहुत जल्दबाज हैं। अगर फलों का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो डिप्रेशन के मर्ज से बचा जा सकता है। दही में इसबगोल का छिलका डालकर पीने से मैदा दुरुस्त रहता है। ये बूढ़े लोगों में भी ताकत बहाल करती है। टांगों के दर्द को रोकने के लिए नीम के पत्तों के तेल से मालिश करें। टांग दर्द उम्र भर के लिए खत्म हो जाएगा। मैदे के दर्द को रोकने के लिए नीम के पत्ते उबाल कर पानी पिएं। औरतें अगर मोटापे से निजात चाहती हैं तो निहार मुंह पानी में लीमू और अदरक का रस मिलाकर पी लें। इनके जिस्म की चर्बी पिघलने लग जाएगी। जापानी फल खाने से दिल को अच्छी सेहत मिलती है और चेहरे पर तरोताजगी रहती है। आंवला खाने से जिस्म में तवानाई आती है और सांस की बीमारियों के लिए मुफीद है। गैस, बदहजमी, कमजोरी, दुबलापन हो तो
अंगूर के 22 दानों का नाश्ता किया करें। इससे मैदे के तमाम अमराज से निजात मिलेगी। गैस, बदहजमी, कमजोरी खत्म हो जाएगी। मैदे की खराबी की सूरत में तेज पत्ती की चाय बनाकर पिएं, इससे मैदा दुरुस्त हो जाता है। नाजरीन, जो इंसान खाने से कबल और बाद में हाथ धोएगा, इस पर रिज़्क के दरवाजे खुल जाएंगे। खाना खाने से पहले जो शख्स हाथ धोता है, खाना इसे खराब नहीं करता। नाजरीन, हरी शिमला मिर्च झुर्रियों को खत्म करने में मदद देती है। निहार मुंह दूध के साथ खजूर खाने से याददाश्त बेहतरीन हो जाती है। जैतून के पत्तों में दही मिलाकर बालों में लगाएं, बाल घने और काले हो जाएंगे। सिरका को गर्म करके कान में एक एक कतरा डाला जाए तो कान का दर्द खत्म हो जाता है और कीड़े मर जाते हैं। नाजरीन इकराम, बादाम 50 ग्राम, सौंफ 50 ग्राम, मिश्री 50 ग्राम और सफेद मिर्च 5 ग्राम लेकर तमाम चीजों को बारीक पीसकर एक एक चाय वाला चम्मच सुबह शाम इस्तेमाल करें। नजर की कमजोरी दूर हो जाएगी। अगर आपको सोते वक्त ख्वाब ज्यादा आते हों तो समझ लो कि आपका दिमाग सही काम नहीं कर रहा। दायमी कब्ज की प्रॉब्लम हो तो अंग्रेजी अद्वियात को तर्क कर दें, देसी दवाएं खाएं और अमरूद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। ज्यादा चाय पीने से बेनाई कमजोर होती है। ज्यादा दूध पीने से बलगम जम जाती है। ज्यादा मसाले खाने से मैदा खराब होता है। ऐसी ग़िज़ाएं जो आपके बदन को बहुत ज्यादा ताकत देती हैं, इनमें देसी घी, चने की दाल, खजूर, अनार, बकरी का गोश्त, अंजीर और अंडा वगैरह शामिल हैं। पाँव के बल बैठकर कोई काम किया जाए तो इसका सीधा असर नजर पर पड़ता है और नजर कमजोर होने लगती है। रोटी नरम और फूली हुई खाया करो। पेट की चर्बी और कमर की चर्बी कभी नहीं बढ़ेगी। अगर किसी जगह पर मच्छर काट ले तो मुतासरा जगह पर चम्मच गर्म करके लगाने से मच्छर के काटने का असर खत्म हो जाएगा और आपको खारिश भी नहीं होगी। अगर आंखों में धुंधला पन आने लगे तो नहार मुंह सुरमा डालने से आंखें ठीक हो जाती हैं। पाँवों पर तेल लगाने से दिमाग तेज होता है। रात को सोते वक्त पाँवों को तिल के तेल से मसाज कर लिया करो। बहुत सारी बीमारियों से पाक रहोगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन हमेशा कंट्रोल रहे तो दोपहर के खाने में सलाद खाया करें। बच्चों या बड़ों की आंतों में कीड़े हों तो इनको मीठे बेर खिलाएं या फिर मीठे बेरों को पीसकर इसका पानी निकाल लें और सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर प्लास्टिक के बर्तनों में हल्दी के निशान पड़ जाएं तो इन निशानों को खत्म करने के लिए इन बर्तनों को बेसन से धो दो। इससे बर्तनों के निशान खत्म हो जाएंगे। जो लोग ज्यादा मुस्कुराते हैं और खुश रहते हैं, इनमें ज्यादा बर्दाश्त की सलाहियत होती है। तो नाजरीन, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।